Good morning, student. This is class 7 subject math lesson number 1 integer. So today in last video we saw the properties of division. In that property I am just going to explain that property one time. Okay, number one property is plus, in which formula is plus divided by plus. When we are going to divide plus divided by plus and minus divided by minus, there is a result always positive. जब भी कोई भी दो नंबर की साइन अगर सेम होती है तो उसका जो आंसर आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है. मीन्स +6 +2 +3 आंसर, -6 -2 +3 आंसर. ओके, देन नंबर थ्री है कि प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू, एंड नंबर 4 is minus divided by plus. There is always answer is negative answer. Okay, it means when the two number of same sign in the operation of division, there is always positive answer, and if the two number have different sign in the operation division, there is always negative result. Okay, I hope you understand. By using that result, we are going to simplify the exercise 1.4. So let's start question number 1 from the given exercise. In the question number 1, evaluate each of the following. Number A, B, C, D, E, F, G, H. There are total A to H question. From that I am going to solve only A, B, C, E and S. Remaining you have to solve. So number A, it is -30 divided by 10. So again here -30 divided by 10. So -30 divided by 10 can be written as -30 multiplied by 1 by 10. Or you can write this, you can simplify this as -30 divided by, directly you can write here 10. No problem. This is a division. This is a division. So 10 ones are 10 threes are, it is a -3. But actually in the 6th grade, I know you solve the some division operation. In that division operation you simplify by taking a inverse. Okay, तो inverse लेके हम भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने इनवर्स प्रॉपर्टी यूज की है. तो -30 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको पता होना चाहिए कि -30 व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो डिवीजन अगर हमें इसको करना है तो इसको डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है. सो -30 ये डिवीजन को कन्वर्ट करना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका रेसिप्रोकल आता है 10 का रेसिप्रोकल 1/10, रेसिप्रोकल यानी multiplicative inverse. Okay, so 1/10, so it becomes again 10 was the 10 threes are, so it is a -3 into 1, it is a -3. यानी इस तरह से ये सिंप्लीफाई किया है. तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसमें इसी तरह से सिंप्लीफाई किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन का कन्वर्ट करने का वो मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसके बाद वाला जो नंबर, डिवीजन के बाद वाला जो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है. तो -5 होगा तो इसका 1/-5, -9 होगा तो इसका 1/-9, इस तरह से. ओके, सो नंबर 2 क्वेश्चन 50 डिवाइडेड बाय -5, यानी यहाँ पर माइनस था, इधर प्लस था, सो माइनस प्लस आंसर इज माइनस. ओके, ये रूल सिंप्लीफाई हो गया. नाउ प्लस माइनस दोनों की डिफरेंस है तो आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन क्या 5 के टेबल का बात है 55 10 था, इट इज अ -10. बट हमें इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखेंगे तो 50 डिवीजन का होता है मल्टीप्लिकेशन, -5 का रेसिप्रोकल 1/-5, 5 1 जार 5 10 जार, इट इज अ -10. ओके, तो आता 50, तो -10 into 1, it is a -10. ओके, ऐड में नंबर सी -36 divided by -10. Now both have the same sign, minus means answer is positive. So इसको फिर सॉल्व करेंगे. -36 डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन 1/-9, 9, यानी इसका आंसर आएगा कि ये भी -9 है, ये भी माइनस गेट कैंसिल, इट इज 36/9. 36/9 होता है कि 9 1 दा 9 4 दा 36. द आंसर इज positive 4. Okay, now here again e number 13 divided by -2 plus 1. 13 divided by, now -2 plus 1, it is a addition and subtraction operation. It is a minus plus, it is a subtraction operation. -2 plus 1, it is a -1, because bigger number sign is a -2. आपको पता है कि कोई भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पर बड़े नंबर की साइन दी जाती है, तो बड़ा नंबर 2 था, उसकी साइन कौन सी थी, माइनस थी, तो माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पर आ गया आंसर -1 इक्वल टू 13
मल्टीप्लाइंग बाय, अब यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लाइंग बाय, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/-1 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया, ये +13 -13 प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मींस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 13 एज इट इज। ओके, उसी तरह से एस नंबर में भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो एस नंबर में क्या दिया है, -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट में डिवीजन ऑपरेशन दिया, तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो -36 डिवीजन को हमने लिखा इसमें मल्टीप्लिकेशन। ओके, पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -36 डिवाइडेड बाय 12। तो आपको पता है -36 डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं हम इसको मल्टीप्लिकेशन में, और ये 12 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/12 आ जाता है। सो यहाँ पर 12 1 जार 12 3 जार, तो यहाँ पर कौन गया, ये माइनस को दे दो, यह था -3 मल्टीप्लाइंग बाय 1 इट इज अ -3। तो यहाँ पर आ गया इसका आंसर कितना आ गया, -3। देखिए -3 और डिवाइडेड बाय 3 यानी इसको भी डिवाइड किया 3 से, तो वापस से यहाँ पर डिवीजन आ गया। सो -3 ब्रैकेट का आंसर आ गया -3। अब इसको डिवाइड बाय 3 करें तो -3, डिवीजन का होता है मल्टीप्लिकेशन 1/3, तो 1/3 3 गेट कैंसिल, आंसर इज 1। तो ये साइन इसको दे देंगे तो -1 से -1 into 1 इट इज -1, so answer is -1। okay, I hope you understand this question number 1. Now let's start to question number 2. Question number 2, verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c। not equal, ये not equal to दिखाना है for each of the following value a b c। तो सबसे पहले अपने पास वैल्यू है a equal to 12, b equal to -4, c equal to -4। तो सबसे गिवन, what is the given, a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c। the value of a is 12, b is -4, c is 2। ये ऐसा गिवन लिखना पड़ता है। putting the given value in equation number 1, equation sorry left hand side of equation। so left hand side कौन है, a divided by b plus c। so a divided by b plus c इसमें वैल्यू पुट के, a की वैल्यू है 12, डिवीजन एज इट इज, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2। so 12 divided by -4 plus 2 is a subtraction, 4 minus 2 it is a -2। okay, so again 12 divided by -2 it means -6। ये आपको डायरेक्ट भी अगर लिखना आता है so you can write it is a -6। similarly we are going to simplify the RHS side। so what is the RHS side, अब इसकी RHS side है a divided by b plus a divided by c। so a divided b plus a divided by c अगर हम करना है तो वापस हम इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएंगी। सो राइट हैंड साइड सबसे पहले a डिवाइडेड बाय b। सो 12 a क्या है, 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6। अगर इसको यहीं पर सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, मैं इसको शॉर्टकट में सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 1 जा 4 3 जा इट इज अ -3, प्लस साइन बीच में आ गई, 12 डिवाइडेड बाय 6 2 यानी होता है 6, तो इसका आंसर आ गया 3। सो LHS एंड RHS आर इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो हमने यहाँ पर वेरीफाइड किया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। चलो इसको देखते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1/-4 प्लस 6, तो ये आता -6 प्लस 6 इट इज -3। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट आपको क्या करना है, आपको खुद को सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये है आपका बी पार्ट, a इक्वल टू -10, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट, इसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक दिया है, ये तो सबसे इजी पार्ट है आपके लिए। सो 336 डिवाइडेड बाय व्हाट टू गेट 336। अब आपने उस प्रॉपर्टी, कल के वीडियो के प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि 336 यानी कोई भी इंटीजर को अगर हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें वही इंटीजर मिलता है। ओके, ये आपकी कल की सेकंड प्रॉपर्टी थी। सो अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 336। अब -75 डिवाइडेड बाय व्हाट वी गेट -1। किससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका -1 होगा। तो ऑब्वियस है ये डिवीजन है, तो हमें इसको उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि 75 के टेबल में 75 कब आता है, 75 1 जार 75। अब यहाँ पर माइनस है और यही माइनस इनको इधर चाहिए था आंसर में, तो इसलिए मैंने इसको माइनस साइन दिया। अगर मैं इसको माइनस साइन देता हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है, लेकिन हमारा -1 है। ये क्या है आपके पास, -1 आंसर दिया। अगर ये -1 आंसर है तो हमें यहाँ पर जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे वो कैसे होनी चाहिए, इट शुड बी द -1।
ओके, तो यहाँ पर हमें प्लस 3075 इसमें पुटअप करना पड़ा। बाद में 200 एंड माइनस 226, अब यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 कब आएगा, जब सेम नंबर होगा तो ही प्लस आएगा, तो यहाँ पर माइनस 206 आ गया। सो इस तरह से आपको ये बाकी के भी क्वेश्चन आपको आपके हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, write the pairs of integer a b such that a divided by 3 is a minus 3. One such pair is 6 divided by 2. 6 divided by 2 is a minus 3, and 6 divided by minus 2 is a minus 3. ये यानी क्यों 6 and 2 के लिए, क्यों 6 divided by minus 2 is a 3. ऐसी पेयर निकाल, तो पहली पेयर आप उन्होंने बताया कि minus 6 divided by 2, यानी मैंने इसमें से बनाया कि minus 6 divided by 2 it is a minus 3. आप और हम बोल सकते हैं 9 divided by minus 3 it is a minus 3. 12 divided by minus 4 it is a minus 3. 9 divided minus 9 divided by plus 3 it is a minus 3. Minus 15 divided by plus 5 it is a minus 3. तो आपको यहाँ पर रूल पता है, एक तो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, तो इसका आंसर निगेटिव आता है, या एक तो माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आता है, निगेटिव. यहाँ पर बस अल्टरनेट मैंने कर दिया, हो गया आपके पास पेयर. ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, जो आपको मैंने इसमें से होमवर्क दिया वो आपको सिंप्लीफाई करना है. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस